एडवांटेज मिलता है बेसिकली, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को ये एडवांटेज अवेलेबल नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चूंकि हमारे पास कंपटीशन वाइप आउट हो जाता है, देयर इज अ मोनोपोली ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इन द इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन। सो आपकी जो रिकग्निशन है बेसिकली, वो फिर आप अपनी चॉइस ऑफ कंट्री में जब आप काम करते हैं या अपनी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन पे जब आप काम करते हैं, तो वो जो एडवांटेज है वो आपको पूरा पूरा मिल रहा होता है। So that's a unique thing and perhaps the very special thing about the CIA qualification. Now, this professional body, I'm talking about IIA Global, जो कि इसकी principal qualification या main qualification CIA है, एक दो और इनकी qualifications भी है। This professional body is an old professional body. ऐसा नहीं है कि ये कोई नई professional body है, अभी जरा trendy हो गई है। Yes, अभी it's so much in demand because of the so many compliance oriented changes that have been taking over the globe, or taking over the corporate arena of the globe in this, especially in the past 10 years. हमारे पास ESG पे, हमारे पास जो है वो कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत सारा काम हुआ, इसी तरह रिस्क पे बहुत सारा काम हुआ। सो वो प्रोफेशनल्स जो इंटरनल ऑडिट बैकग्राउंड से हैं और इंटरनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखते हैं, ग्लोबल क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनकी डिमांड जो है वो स्काई रॉकेट हो गई है बेसिकली। सो जो प्रोफेशनल बॉडी है IIA ग्लोबल वाज एस्टैब्लिश्ड in 1957, and so far ये थोड़े से पुराने stats हैं, but so far this professional body has more than 200,000 members across the globe, and this qualification is being provided and the examination of this qualification are being held in more than 150 countries of the world. So it is truly a global qualification. I mean, you may be doing CIA and you can comfortably appear in your exam in Pakistan, or in India, or in UAE, Saudi Arabia, Malaysia, and even in African countries. So you can have examination everywhere. So much so, हमारे कुछ साथी जो कि overseas काम करते हैं, for example, you belong to India, you belong to Pakistan, or belong to let's suppose Bangladesh or wherever, and आप register होते हैं अपनी home country में, and then you move to UAE, या आप UAE में register होते हैं और you are on a visit to your home country in Pakistan or India or whatever, तो आप एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू द ग्लोबल मोबिलिटी, नॉट जस्ट एट द एग्जामिनेशन एवेन्यू बट आल्सो एट द प्रोफेशनल एवेन्यूज, कि आप ये इस क्वालिफिकेशन के बाद जो कंपेटिटिव एडवांटेज लेते हैं, उसके बाद आप कहीं भी उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो द क्वालिफिकेशन हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, स्पेशली इन द GCC कंट्रीज। So the qualification has gained a lot of attention and a lot of importance in GCC countries, in developing countries like India, Pakistan, and Bangladesh, and obviously in the developed world like Canada and US, because it already belongs to the US, from where this qualification has started. अच्छा, यहाँ पे एक important चीज add कर दूँ. Now this is especially for Pakistan and professionals who have joined us from Pakistan, or Pakistani professionals, I would say. It's a good reference point for professionals outside Pakistan as well. कि इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर हम इसकी रेगुलेशन बात करें कि जिस तरह से उसमें इंक्रीज आ रहा है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज द रेगुलेटर of the financial sector and the whole banking sector in Pakistan, the State Bank of Pakistan has already adopted standards of the Global Institute of Internal Auditors, and now it is mandatory for the banks all over Pakistan to adopt internal audit standards and follow internal audit standards for the practices of the internal audit departments in their banks. अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको देखें, अब कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है कि वो बैंक्स एंड अदर देन बैंक सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज पे, लिस्टेड एंटिटीज पे अप्लाई होता है, राइट? और जो चीज लिस्टेड एंटिटीज पे, लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होती है, वही डाउन द लाइन फ्लो भी करती है। जो लिस्टेड एंटिटीज नहीं भी होती, वही उसको फॉलो कर रही होती है, जो भी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों ना हो। सो लिस्टेड कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना ऑलरेडी मैंडेटरी है, एज पर द कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, अब उसमें से फर्दर एक्सटेंशन क्या हुई कि बैंक सारे ही लिस्टेड कंपनीज होते हैं, वो SCCP के थ्रू रजिस्टर होते हैं। हाउएवर, बैंक्स चूंकि लिस्टेड भी होते हैं, तो इंटरनल ऑडिट बैंक्स के लिए मैंडेटरी हो गया, और उस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को रन कैसे करना है, चलाना कैसे है, बेसिकली उसके लिए जो एप्लीकेबल गाइडलाइंस हमारे पास हैं, वो हमारे पास है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि SCCP would also be following the same, and very soon
जो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं एग्जैक्टली स्ट्रिक्टो सेंसो वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे लीगली, जैसे बैंक्स पे तो लीगली अप्लाई हो गए ना। सो प्रोफेशनली इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी पूरी इंडस्ट्री पे, पूरे इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन पे एप्लीकेबल हो गए, लीगली बैंक्स पे हो गए। और चूंकि ये एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है तो विद इन नो टाइम, विद इन सम टाइम हम देख रहे होंगे कि वो जो लीगल उसकी एप्लीकेशन है या लीगल ऑब्लिगेशन है बेसिकली, वो हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर में अदर देन बैंक्स के लिए भी बन रही होगी। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल as to how the recognition and acceptance of the standards is going on, और किस तरह उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक सोर्स ऑफ नॉलेज से बढ़ के एक लीगल रिक्वायरमेंट की तरफ जो है वो जाती जा रही है। सो नाउ बेसिकली दिस इज द हाई टाइम कि अगर आप सब लोग, हम सब लोग सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर हम सब लोग एज प्रोफेशनल्स इस नॉलेज को गेन करते हैं बेसिकली, सो डेफिनेटली 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 5 years down the line, we will be able to leverage that skill set and knowledge that we have in a very good way, क्योंकि एडवांटेज पर आप तभी ले रहे होंगे जब आप CIA क्वालिफाइड होंगे। क्योंकि यहाँ एक और चीज नोट करना इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें अभी चेंजेस भी आ रहे हैं, जिसकी थोड़ी सी बात अभी करेंगे, कि जो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली वो सिर्फ CIA क्वालिफिकेशन में ही पढ़ाए जाते हैं। I mean, you may be coming from ACCA background, ICAP background, ACMA background, and ICAW background, you name it, any professional qualification, no accounting qualification or academic qualification like MBA, MCOM is no qualification is authorized to basically teach internal audit standards to its students and professionals. क्योंकि जो IAA ग्लोबल के जो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉपीराइट ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स का है। सो अगर आपने बैंक्स में इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं, सो चलें कुछ ना कुछ नॉलेज की हद तक तो शायद दूसरे लोग कर लें, किसी ना किसी से सीख के कर लें, लेकिन फुल फ्लेज नॉलेज बहरहाल आपको तभी होगा जब आप एक CIA क्वालिफाइड प्रोफेशनल होंगे। सो फर्ज करें आप एक बैंक हैं और आप इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो फुल फ्लेज फॉर्म में दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं या दूसरे क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के मेंबर्स हैं वो उसको ना समझ सकेंगे, ना अप्लाई कर पा रहे होंगे। आपको CIA क्वालिफाइड की रिक्वायरमेंट बहरहाल फुलफिल करनी पड़ेगी। सो दिस इज अगेन just to give you an example that since the literature of the standards is gaining importance from not just a source of knowledge, 10 साल पहले, 15 साल पहले ये एक गुड प्रैक्टिस थी, एक सोर्स ऑफ नॉलेज था, बट अब ये बढ़ के लीगल इंपॉर्टेंस की तरफ जो है वो बात जा रही है। तो वो आप तभी बेसिकली उसको फुलफिल कर सकेंगे जब आपके पास वो स्किल सेट और वो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो अवेलेबल होगा। सो दैट्स जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। इसी तरह अगर हम सऊदी अरेबिया में देखते हैं तो सऊदी अरेबिया में जो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो गेन कर चुकी है। UAE में जो ये स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर चुकी है। और फ्रॉम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सोर्स ऑफ नॉलेज से बढ़ के लीगल इंपॉर्टेंस की तरफ बेसिकली जा रहे होंगे। और कोई भी चीज बेसिकली जब इवॉल्व होती है तो पहले मार्केट उसको अडॉप्ट करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर उसको अडॉप्ट करता है, एंड देन फिर बेसिकली वो रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो अब हम उस फेज में हैं बेसिकली जहां पे मार्केट इसको अडॉप्ट कर चुकी है, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड प्रोफेशनल इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, और अब हम इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मजीद आगे बढ़ते हुए देख रहे होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जो कि हम हमारे लिए डिस्कस करना सॉर्ट ऑफ जरूरी है। ये जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, बाय द वे, दिस यू कैन सिंपली चेक ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप कहेंगे तो आफ्टर द सेशन, बल्कि आई विल शेयर दैट लिंक आफ्टर द सेशन, यू कैन विजिट दैट लिंक। और जो सर्कुलर SBP has issued on their website, जिस पे क्लियरली मेंशन्ड है that the banks are required to adopt the standards of Global Institute of Internal Auditors. मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ जो है, जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का क्राइटेरिया प्रेजेंट करता है, हमारे पाकिस्तान के लॉ की हद तक मैं बात कर रहा हूं अभी, कि कंपनी लॉ जो क्राइटेरिया प्रेजेंट करता है उसमें CIA को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज क्वालिफिकेशन एलिजिबल फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो जनरली चले आई टेक दिस लेवरेज एंड से कि पाकिस्तान में अक्सर हम जो लेजिस्लेशन करते हैं वो थोड़ा सा बाद में ही कर रहे होते हैं। रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज already taken those initiatives. So I'm pretty sure that these initiatives would have already been in place in the developed countries, and definitely, generally, countries like Pakistan, India, Bangladesh, they are following the trend. So since we are adopting these things in legislation, the developed world and their markets obviously have already adopted these sort of requirements. All right. Just a second, please.
तो जनाब हमारे पास जो सिलेबस है, गुड थिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन is that we don't have to take very long exams, or we don't have to take a series of long examination. There are only 3 exams that you have to take up, and those exams are also called parts. हम उसे like we can also say that it's a part 1, part 2, it's part 3. G will take questions later on, please. Thank you. सर Just इसको give me फुल स्क्रीन कर दे काइंडली, जस्ट फुल स्क्रीन कर देगा। okay, no issues. Thank you. Okay. So there are 3 exams for the qualification, which are called level or part or exam. It's one and the same thing. So we have level 1, which is internal audit fundamental, level 2, internal audit engagement, and level 3, which is internal audit function. Now, the important thing about this exam is that all these exams are multiple choice questions, right? So you do not have to answer, or you do not have to write long answers as we used to do in our previous qualifications. हमारी professional qualifications में या हमारी दूसरी academic qualifications में relatively examination structure, यानी एग्जाम देने को एग्जाम हैंडलिंग की सेंस में इसमें जरा हैसल कम, जाहिर है जो स्टडी रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट इज देयर, बट बहरहाल इट्स अ फैसिलिटी इन इट्स टाइम. एंड हैविंग सेड दैट हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली एग्जाम्स आर कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, and exams are conducted at examination centers, right? तो एग्जाम्स जब थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि क्वालिफिकेशन के स्ट्रक्चर में ये फायदा है, फैसिलिटी है कि आप एग्जाम जो है वो किसी भी डेट पे दे सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे ये कैच है थोड़ा सा कि जब हम ये बात करते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो किसी भी डेट पे हम दे सकते हैं, तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो इस फ्लेक्सिबिलिटी का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन अपीयर इन एग्जाम ऑन एनी डेट ऑफ योर चॉइस, instead of using that to our advantage, we take that to our disadvantage actually, and we convert this advantage into a disadvantage. Because if I know that fine, I can give exam in May or I can give exam in June, so what I would do, I would start deferring it, and I would start postponing it, that fine, I'll take the exam in June, and then June May I will not be taking the exam, I got busy, and then I'll be taking the exam in July, and then I'll be taking the exam in August, and so on. So what we do is that I meet and greet a lot of professionals who are aspiring, and mashallah they are good professionals, but because of so many things going on at the professional front, at family front, they remain unable to take up the exam. So that's because we are unable to sort of channelize and convert this advantage into actually actually into real sense of advantage for us, basically. So what we do through our sessions is that when we get connected in the form of series of sessions, and we are able to not just prepare for ourselves, but we are also able to set a certain target for ourselves and then appear in the exam accordingly, and so that we are able to channelize that. Exams जो है हमारे पास throughout the year available होते हैं. Obviously I shall be guiding on individual basis as to when each one of you or individual one of you would be taking up that exam according to your individual scenario, according to your preparation, and so on. So exams that we have are exam 1, internal audit fundamental, internal audit engagement, internal audit function. All of these exams majorly comprise internal audit standards, and definitely internal audit standards is altogether a new thing that we study. So for example, if you may be coming from ACCA background or accounting background, ICAP background, ACCA background, like I'm also a fellow member of ACCA, so I know. तो हमने जो accounting qualifications में standards पढ़े होते हैं, basically they are external audit standards, right? So those standards are basically ISAs, International Standards of Auditing. So ISAs are formulated by IAASB, International Accounting and Auditing Standard Board. It's totally a different body as compared to the Global Institute of Internal Auditors. So now you have since you have two streams in the profession, one is the external audit, which is altogether a different thing. If someone of you has confusion about internal audit and external audit altogether, you can consult me separately, but I'm assuming that majority of you are aware of that. So external audit standards are altogether different. Whereas अभी हम जिन standards की बात कर रहे हैं और जिस qualification की बात कर रहे हैं, that relates to the internal audit standards.
And internal audit standards are issued and published by Global Institute of Internal Auditors. So for all of us, these standards are going to be altogether new. So it's very important that we follow a certain methodology, we follow a certain set of guidelines, because we also have to determine and identify a lot of do's and a lot of don'ts that we should do and that we should not do, for the sake of making sure that we are able to complete our examination in the first attempt. So इसमें हम जो standards पढ़े होते हैं basically वो हमारे पास internal audit standards होते हैं. So ये फर्क समझना बहुत जरूरी है. दूसरी बात ये है कि एग्जाम्स जो है MCQ बेस्ड हैं और एग्जाम सारा साल अवेलेबल होते हैं. हम जब सेशन करते हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बेसिकली हम प्लान करते हैं कि आपको एग्जाम कब देना होता है ऑन योर इंडिविजुअल सिनेरियो बेसिस ऑब्वियसली. सो आई स्टे कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू जेंटलमैन एज टू व्हेन each one of you basically would be appearing in the examination. And mic off कर दीजिए. Only 5-7 minutes remaining for the presentation and then your question and answer inshallah. So आपके पास जो है वो part 1 में जो है you have 125 questions. Part 1 comprises 150 minutes, which is 2.5 hours. And then you have part 2, you have 100 MCQ based questions. You have 2 hours for that. And then you have part 3, the same 100 questions and 120 minutes for that. ये आपके पास एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स में आपके पास अवेलेबल होते हैं. कोविड के दिनों में एग्जाम्स यूज्ड टू बी अवेलेबल एट होम, बट नाउ एट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड एग्जाम्स आर अवेलेबल एट एग्जामिनेशन सेंटर्स. पाकिस्तान में, यूएई में एग्जाम्स जो है, इंडिया में एग्जाम्स जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ही अवेलेबल है. एंड बाय द वे रिकमेंडेड भी यही है. घर में आप देंगे तो चलें, पाकिस्तान में आप एग्जाम देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट इज गोइंग टू बी योर हैसल. सेंटर में एग्जाम देंगे तो इट्स गोइंग टू बी देयर हैसल. सो इट्स ऑलवेज गुड टू लीव दीज रिस्पांसिबिलिटीज ऑन देम एंड सो दैट वी आर फ्री, मेंटली फ्री एंड वी जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम. एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, रेलेवेंट क्वेश्चन होगा लाइक हु इज एलिजिबल फॉर द क्वालिफिकेशन. So now there are 3 main criteria items for the eligibility of the qualification. If you are a bachelor's, you are eligible. If you are masters, you are eligible. If you have a complete professional qualification like ACCA, ICAP, ACMA, Chartered Accountants of India, ICAEW, PIPFA, if you have a complete professional qualification, you are eligible. If you have none of these, but you have 5 years of relevant experience, let's suppose you are just, let's suppose you have done FA, FSC, you have done intermediate, you have done A levels. Just for example, some of our brothers and sisters may be coming from professional qualifications which are not yet complete. For example, you may be a CA finalist, you may be an ACCA finalist, and you have more than 5, you have 5 or more than 5 years of experience, then you are eligible to appear in your exam. Or your experience includes your articles experience, right? Your experience can be from external audit, your experience can be from internal audit, your experience can be from accounts, from risk advisory, from budgeting, from management. Any suitable business experience is acceptable to be entered into the CIE qualification. So my eligibility may repeat kar do. If you have done bachelor's, you just need 2 years of experience. If you have done masters, you just need to file 1 year of experience. If you have a complete professional qualification, like you are an ACCA member, ICAP member, ACMA member, it means you already have the qualification, right? You have already passed the exam and you already have the experience. That's why you became a member. So that is just fine. If you are a member, you are eligible. If you are CA finalist, ACCA finalist, somewhere in between your previous professional qualification, you have done A levels, FA, you have done ICS or any intermediate high school qualification, and you have 5 years of experience, you are comfortably eligible. So इसका मतलब है ये जो eligibility criteria है basically वो काफी broad है. American qualifications are generally very generous in the form of eligibility. They welcome everyone because the examination process will make you so capable that once you have done the qualification, you are as good as whether you were coming as an ACCA member or as ACCA finalist or CA finalist. जब आप CIA qualified हैं तो आप at par हैं with any other CIA qualified professional. तो ये हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैंने स्क्रीन पे एक्सप्लेन भी किया है. अब अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लें, फी स्ट्रक्चर इज क्वाइट अफोर्डेबल इन अ सेंस कि आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल रही है जिसमें आपके पास एक वन टाइम एक्सपेंस है मेंबरशिप का, देन आपके पास वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपेंस है $120 रजिस्ट्रेशन का, एंड देन आपके पास जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की इंडिविजुअल फी है.
सो ये जो आपके एक्सपेंसेस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ये आपको लमसम पे नहीं करने ऑफ कोर्स, ये जैसे जैसे आप क्वालिफिकेशन में आगे जाते हैं वैसे वैसे आपको ये एक्सपेंसेस जो है पे करने होते हैं। अगर आप इसका सम कर लें, सो दैट वुड बी समवेयर अराउंड $1100। सो इट्स लाइक कि आपको $1100 में, विच इज लेस देन और समवेयर अराउंड 300,000 रुपीज, पाक रुपीज एट दिस स्टेज, इंडियन में और ज्यादा कम हो जाएगा, perhaps that would be like 120, 130. Not exactly aware of the Indian currency parity at the moment, but I believe somewhere like that. और दिरहम्स और रियाल में तो ये बहुत ही ज्यादा sort of nominal सी अमाउंट जो है वो बन जाएगी। like 300 को अगर मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, वैसे 3.75 आई बिलीव चल रहा होता है, so that's going to be like यानी $1100 को आप जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई कर लें, so that's going to be like 4,000, 4,200 something like रियाल्स और दिरहम्स और whatever. सो आपको बेसिकली इस नॉमिनल और मॉडरेट फी स्ट्रक्चर में एक कंप्लीट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलती है, जो अगर आप इस टाइम जो है बेसिकली 2 साल का मैट्रिक का एक्सपेंस भी देख लें किसी मॉडरेट स्कूल का, यानी 9th और 10th क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इससे ज्यादा। right now? Where are we? Sorry, you have a question? I'll take the question a little later. Thank you, ji. Basically it's the fee structure that we were discussing, कि आपको एक मॉडरेट सी फी स्ट्रक्चर में, जो कि आपको अक्रॉस द पीरियड ऑफ योर क्वालिफिकेशन देना है। ऑफ कोर्स आपको लमसम नहीं देना, आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाती है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर, जैसे कि अभी हमने जो है वो इसको डिस्कस भी किया। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो थोड़ी सी रिकॉग्निशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Just to sort of reiterate that, कि आपकी recognition is not only happening at the legal arena, but also happening at the market and corporate front, and also getting recognition across different parts of the world, or across the world rather I would say, whether it be the GCC countries, जहां हमारे अभी I am sure बहुत सारे professionals जिन्होंने अभी आज हमें join किया होगा, a lot of you would be sitting in the GCC countries, a lot of you would have joined from Pakistan, and some of you have also joined from Africa, Malaysia, and some other parts of the world as well. जो moving forward with the discussion, हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो चैट में भी आए हुए हैं, तो अब हम ये कर सकते हैं, I'll be stopping the presentation, and now you are master of the session in a sense कि one by one जो है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, and all of you are most welcome. मैंने just to reiterate, I have already shared my number in the chat box, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाए तो आप जो है बाद में पूछ सकते हैं, नंबर 1। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस, अगर आप मुझे 1 सेकंड प्लीज दे दें, तो आई विल बी शेयरिंग अ लिंक विद यू, एक छोटा सा लिंक, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। Okay, I have just shared a Google form in the group. तो हमारे, I would request the session participants to please fill this small Google form, so that I get your details as to who which members have joined and graced our today's session, so that inshallah subsequently we also plan for the sessions, right? So over to you जनाब, I'll be start taking up with the questions. आप माइक से भी पूछ सकते हैं, चलें चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जी। अवैस मैं इसका जो है वो आंसर करता हूँ, आप पूछ रहे हैं जो हमारी, और जी, so we have a question regarding the coaching fee of the sessions that we will be conducting. It's quite moderate and I would say quite nominal, frankly speaking. That would be 17,000 Pakistan rupee for part 1 session that we have, and you can also pay that in 2 installments as we proceed further with the session. गूगल फॉर्म जो है वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। हमारे वो साथी जिन्होंने आज की ओरिएंटेशन ज्वाइन की है एंड विलिंग टू join the upcoming study sessions as well, you are requested to fill that Google form so that your details come to me, because उसके लिए फिर इंशाल्लाह I will be creating a separate group. ये ग्रुप तो हमारा sort of एक मेन ग्रुप है या जनरल ग्रुप है, but that's going to be an exclusive session group or the class group, जिसमें फिर आपकी डिटेल्स मेरे पास आ रही होंगी, एंड ओनली हमारे कुछ जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स होंगे वो फिर उस ग्रुप का हिस्सा होंगे। सो
चैट बॉक्स में भी चले शेयर कर देता हूँ आप सबके लिए, एंड उसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। ऑलराइट जी, चलें ये क्वेश्चन हमारा एड्रेस हो गया है। अच्छा, देन हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, is there any kind of similarity between internal and external audit standards? There is some form of similarity, but the scope of internal and external audit is altogether different. थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो जो एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस और स्कोप होता है बेसिकली दैट इज टू ऑडिट, और आसान वर्ड्स में दैट इज टू evaluate and check the financial statements and records of a company and give an opinion on the accounts and financial statements, that if those financial statements are true or not. Like if I audit the financial statements of a company, I will be giving my opinion कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इस कंपनी के अफेयर्स के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सो मेरा स्कोप इस हद तक महदूद है। एक्सटर्नल ऑडिट में मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे अपनी कंपनी को हेल्प करना है सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले से बेहतर तरीके से अचीव करे। सो इंटरनल ऑडिट हैज फार बिगर एंड मोर स्कोप जो है बेसिकली उनका स्कोप एक्सटर्नल ऑडिट स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है, राइट। सो इसलिए हम इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड जब पढ़ते हैं, इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है एज पार्ट ऑफ प्रोफेशन वो एक्सटर्नल ऑडिट से काफी ज्यादा होता है। ये वाला सेशन जो है बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब मैं एनकरेज करूंगा कि अगर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो माइक ऑन करके पूछ लें तो दैट वुड बी इवन ग्रेट कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो सेशन में और भी ज्यादा बेहतर अंदाज में हो सकेगी। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब? जी एहसन साहब, जी जी नेम कर जी दीजिएगा। जी अच्छा, एहसन बात कर रहा हूँ। रिजवान भाई, मैंने लिंक्डइन पे चेक किया है कि इन द मंथ ऑफ मई 25% ऑफ भी है इसके एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे और पार्ट 1 पे, उसके बारे में भी कुछ गाइड कर दें सबको। जी मैं बिल्कुल गाइड कर देता हूँ। बेसिकली जो मंथ ऑफ मई है बेसिकली, I think जी now you यूसुफ, have to take रेलेवेंट क्वेश्चन। the left and go to the service lane. जस्ट अ सेकंड। जी जो ये क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिकली मंथ ऑफ मई इज द एनिवर्सरी ऑफ आईएए ग्लोबल, सो ड्यूरिंग सम इयर्स इन द मंथ ऑफ मई दे ऑफर डिस्काउंट। तो इन दिस कमिंग मंथ ऑफ मई दे ऑलरेडी हैव ऑफर डिस्काउंट कि आपको जो ये एप्लीकेशन फी हमने बात की थी ना, एप्लीकेशन फी $120 एंड देन आपके एग्जाम फी है $310 एंड देन आगे सब्सिक्वेंटली 280। सो मंथ ऑफ मई में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर मंथ ऑफ मई में रजिस्टर करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी पे और आपको एग्जामिनेशन फी पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये बहुत अच्छा मौका है, आप डिस्काउंट को बिल्कुल अवेल करें, डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फर्ज करें आज आप फी पे करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फौरन इमीडिएटली आपको एग्जाम देना। सो फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट मंथ मई में फीस पे करते हैं, सो फीस पे करने के बाद आपके पास 6 मंथ्स होते हैं कभी भी एग्जाम देने के लिए, राइट। सो यानी अगर आप मंथ ऑफ मई में डिस्काउंट अवेल करते हुए, मंथ ऑफ मई में का मतलब है बाय द वे टिल 31st ऑफ मई। सो इसका मतलब है फर्ज करें आप मंथ ऑफ मई के एंड में फीस पे करते हैं, सो आपके पास जो है बेसिकली नवंबर एंड तक का टाइम आपको मिल जाएगा कि आप एग्जाम कभी भी दे सकते हैं और आपको ये डिस्काउंट जो है वो भी आपका अवेल हो जाएगा। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हमारे वो साथी जो डिस्काउंट को अवेल करना चाहे वो डिस्काउंट को बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, राइट। सो इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट शेयर कर दूं। दिस अनाउंसमेंट इज नॉट फ्रॉम माय साइड, दिस अनाउंसमेंट इज फ्रॉम आईआईए ग्लोबल, और वो ये है कि कुछ हमारे साथियों की नॉलेज में होगा कि हमारा जो आईआईए ग्लोबल के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अपडेट आई है। यस, आईआईए ग्लोबल के स्टैंडर्ड्स में अपडेट बिल्कुल आई है। स्टैंडर्ड्स में अपडेट है तो अकॉर्डिंगली हमारे सिलेबस में भी कुछ अपडेट्स हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में तकरीबन 25 to 30% की अपडेट जो है आई है, बल्कि आई वुड से कि थोड़ा सा सिलेबस जो है वो बढ़ ही गया है, यानी अगर हम प्रीवियस स्ट्रीम से कंपेयर करें। अभी जो प्रीवियस सिलेबस हमारे पास चल रहा है उसके मुताबिक अगर आप एग्जाम देना चाहें, जो कि शायद वो कोई कुछ साथी चूंकि पुराने हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया हुआ सेशन में, वो देना चाहें तो दे सकते हैं।
जो नए साथी हैं उनको तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इंफॉर्मेशन सबके लिए है कि जो नया सिलेबस, जो ओल्ड सिलेबस है, उसके मुताबिक आप 27 ऑफ मई तक एग्जाम दे सकते हैं। सो इफ यू प्लान नाउ, अगर किसी का ये टाइम यूटिलाइज करने का प्लान है, यू कैन कंसल्ट मी and you can take recordings of the sessions according to the old syllabus and you can start right away. If you can plan that, you have a little time to focus, so you can also that abhi ye doable hai. However, 28th of May 2025 से new syllabus will be examinable. So हमारे जो upcoming session होगा, जो हम classes को follow कर रहे होंगे इंशाल्लाह, उसमें जो है basically हम जाहिर है नए syllabus को ही focus कर रहे होंगे और हम प्लान कर रहे होंगे हम जो अपने सेशन में जो प्रेपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, नॉर्मली हमारे जो पार्ट 1 सेशन की ड्यूरेशन होती है वो 2.5 months होती है। सो वी हैव 2 क्लासेस इन अ वीक, जो कि इसी तरह ऑफिस आवर्स के बाद होती है रात 9:15 बजे, और 2 क्लासेस इन अ वीक होती हैं, और 2.5 months to 3 months बिटवीन दैट हम जो है जनरली 2.5 months में हम पार्ट 1 की प्रेपरेशन और सिलेबस मुकम्मल करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर एंड प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं और कंफर्टेबली इतने पीरियड में आप पार्ट 1 एग्जाम देने की पोजीशन में आ जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके इंडिविजुअल सिनेरियो में कोई ऐसी मसरूफियत नहीं आ गई जिसने आपको बिल्कुल बिजी कर दिया। फर्ज करें कोई कहे यार मैं तो बिल्कुल ऑफिस में फंस गया, या मैं बीमार हो गया, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, दैट्स अ सेपरेट केस। ऑफ कोर्स एवरी इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेसिकली हमारे पास 2.5 से 3 माह का टाइम होता है जिसमें कंफर्टेबली और कॉम्प्रिहेंसिवली हम पार्ट 1 की प्रेपरेशन करते हैं। तो उस रेफरेंस से अगर आप देखें तो 28 मई से नया सिलेबस एप्लीकेबल है। सो इसी चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम नए सिलेबस को ही इंशाल्लाह फोकस कर रहे होंगे। सो ये एक हमारे पास जो है वो आ गया। अब अगर मैं एक और छोटी सी आपके साथ जो है वो रेफरेंस पॉइंट शेयर कर दूं, इसमें IIA ग्लोबल की तरफ से उन्होंने शेयर किया है कि सिलेबस में जो है बेसिकली चेंजेस क्या आए हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जो हमारे नए साथी हैं फ्रैंकली उनको को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा, और जो पुराने हैं वो भी देख के शायद बहुत ज्यादा ना समझ सकें, क्योंकि जो टाइटल्स हैं उसमें उन्होंने को बहुत ज्यादा चेंज फ्रैंकली नहीं किया, लेकिन जो उसके इंटरनल कंटेंट है उसमें बहरहाल कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो जरूर है। ये एक स्क्रीन पे छोटा सा चेंज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही हो अगर हमारे साथियों को। अब देखिए जो CIA पार्ट 1 का 2019 का सिलेबस चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ एग्जाम जैसे मैंने पहले बताया कि 27 ऑफ मई है, उसमें हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं जिसकी डिफरेंट रेशियोज हैं। अच्छा, अगर आप इनके नाम पढ़े तो आप देखें ये है फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड ड्यू केयर, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फ्रॉड रिस्क। इसमें जो चेंज आया तो उसमें क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर जो है वो आज के सेशन में मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया था कि वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो जाएगी, क्योंकि जो तो ट्रांजिशन में है उनके लिए वो रेलेवेंट होगा। जो बिल्कुल नए सेशन में ज्वाइन करेंगे तो पहले स्टैंडर्ड्स का क्या स्केलेटन था उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ा होगा बेसिकली। तो सबको साथ लेके चलने के लिए इंशाल्लाह वो मैं जब सेशन स्टार्ट करूंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, तो आप ये देखें कि फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंस और ये जो 6 कंपोनेंट्स थे ये मर्ज हो गए हैं। फाउंडेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट नाम सेम है, लेकिन उसकी वेटेज आप देखें 15% से 35% हो गई है। बेसिकली इसमें कंटेंट बढ़ गया है। ये फाउंडेशन सिर्फ नाम तो फाउंडेशन है, बट ये इट्स नॉट जस्ट ओनली द फाउंडेशन थिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन दैट। एंड देन उसके बाद जो इंडिपेंडेंस और प्रोफिशिएंसी आप पढ़े हैं, ये IIA ग्लोबल का कोड ऑफ एथिक्स होता है। कोड ऑफ एथिक्स जो है बेसिकली वो भी अब जो नए इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं तो स्टैंडर्ड्स की ही एक डोमेन बन गई है। अगेन ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी बात, उसको उन्होंने नाम दे दिया एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म में। एंड QAIP जो है, जो क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, this used to be a component of part 1. Now this component has been shifted to part 3. Part 1 से in the new stream ये syllabus निकल गया है, और गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है उसकी वेटेज 30% है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम वेटेज, बट इसमें जो कंटेंट है, सिलेबस कंटेंट है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। फ्रॉड रिस्क की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, पहले वो 10% पे था, न्यू सिलेबस में फ्रॉड रिस्क जो है वो 15% पे आ गया है। इसमें ना सिर्फ ये कि इसकी वेटेज बढ़ गई है, बल्कि इसमें कंटेंट भी बढ़ गया है। ये हमारे पास कुछ सिलेबस का ऑब्वियसली एक ओवरव्यू है। तो हमारे, अगेन मैं रिपीट कर दूं,
क्योंकि हमारे पास अभी आज के सेशन में कुछ वो साथी हैं जो प्रीवियसली जिन्होंने पढ़ा है बट एग्जाम नहीं दिए अपनी मसरूफियात की वजह से। सो अगर आप पुरानी स्ट्रीम के मुताबिक एग्जाम देना चाह रहे हैं, कंसल्ट विद मी, डिस्कस विद मी। अगर आपके पास रेडी टाइम अवेलेबल है फाइन, लेकिन अगर आप डाउटफुल हैं तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रिस्क लें। नो इश्यूज, नई स्ट्रीम में हम एंटर होंगे एंड कंफर्टेबली नई स्ट्रीम के साथ प्रिपेयर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई जल्दी करने की जरूरत बेसिकली नहीं है। मतलब अगर आप अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, या आपके पास टाइम है, कोई लीव्स हैं, बिस्मिल्लाह, आप एग्जाम दे दें, आपने पढ़ा हुआ यूटिलाइज कर लें। लेकिन जस्ट टू सॉर्ट ऑफ अवॉइड द चेंज, तो चेंज से डरने घबराने की जरूरत नहीं है और आपने घबराना नहीं है और आप कंफर्टेबली जो है बेसिकली नई स्ट्रीम में आ सकते हैं। सो बेसिकली जो चेंज ओवर होगा पुराने साथियों के लिए भी, वो ऑब्वियसली कंफर्टेबली, चूंकि हम सबको साथ ही लेके चल रहे होंगे, तो इंशाल्लाह वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड यू विल बी एज गुड एज एनी न्यू प्रोफेशनल जो कि ये ग्लोबल में एंटर हो रहा है, नए स्टैंडर्ड्स को पहली दफा से जो है वो समझ रहा है। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। और जी जी जनाब, और आप जनाब, sorry, Amir here, your old student from another group. Actually, by looking at the changes, if I am ready to take the exam, it seems like that the old bifurcation suits me. What do you think? Like, if anybody is prepared enough, जी देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ और आपके पास अभी कमिंग स्केड्यूल में अगले एक महीने में कोई खास बड़ी मसरूफियत नहीं है, फिर और बात है। बट अगेन हैव अ सेपरेट डिस्कशन विद मी, क्योंकि अभी आपका थोड़ा इंडिविजुअल सिनेरियो होगा, तो मैं चाहूंगा कि हम इसको इंडिविजुअल जरूर डिस्कस करें सो दैट वी मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, राइट। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि यार जल्दी करें जस्ट बिकॉज कि चेंज अवॉइड करना है। तो यार चेंज क्यों अवॉइड करना है, चेंज इज गुड, हम चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे, जो है वो मसले वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि यार हम कौन सा स्टडी मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करें होंगे। तो स्टडी मटेरियल इज ऑन मी। स्टडी मटेरियल जो हमारा नया सेशन होगा, स्टडी मटेरियल आई विल बी शेयरिंग इन द सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो चार्जेस फॉर इट। एंड स्टडी मटेरियल आई विल बी शेयरिंग विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कोर्स, जैसे कि हम हमेशा उस पर जो है वो पढ़ते हैं। एंड इंशाल्लाह जो स्टडी मटेरियल है वो आपको सेशन में ही जनाबे वाला मिल रहा होगा, सो उसकी हमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं होगी। जी दोस्तों, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप। रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, अदनान है जी। रिजवान साहब, काफी टाइम हो गया, पार्ट 1 आपके साथ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड इट, एंड करंटली मैं पार्ट 2 को देख रहा हूँ। इट्स बीन टाइम, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, और अभी जो मैंने कोर्स कंपैरिजन किया है तो मोस्टली जो पार्ट 3 की चीजें थी, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द पार्ट 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So the part 2 content has been more as compared to the current one. जी, part 2 का सिलेबस बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल। तो but on your take, like मैंने इसको 2 दफा पढ़ लिया हुआ है कोर्स कंटेंट को, और अब मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमारी पुरानी रूटीन थी उसके मुताबिक। तो इट शुड बी बेटर। आपकी क्या एक प्रोफेशनल एडवाइस है कि अभी तो सही है, पॉइंट टेकन अदनान साहब। आपका भी चूंकि ये इंडिविजुअल सिनेरियो है, अभी चूंकि सेशन में ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने पार्ट 1 ही अभी पहली दफा टेकअप करना है, तो इंडिविजुअल जो सिनेरियो है वो फिर मेरे ख्याल में इंडिविजुअली उसको डिस्कस करके मैं ज्यादा इन्फॉर्म्ड आपको एडवाइस दे सकूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल सिनेरियो है दैट विल रिक्वायर अ डिस्कशन। ओके, गॉट इट। एक चीज मुझे कंफर्म करनी थी, जो अभी पार्ट 2 मतलब जो ओल्ड कोर्स के ऊपर दे रहे हैं पार्ट 1 या पार्ट 2, क्या उनके ऊपर भी ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है जो मई का है, और ये जस्ट नए कोर्स के मुताबिक? मुझे इफ यू पे इन द मंथ ऑफ मई देन यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट। ओके, थैंक यू। आप ओल्ड सिलेबस में या नए सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस वाले मतलब ये है कि वो उनके कोई गैर थोड़ी है, मतलब वो भी तो आ जाएगी, ग्लोबल का ही सिलेबस है ना, तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर भी जो है वो डिस्काउंट तो एप्लीकेबल होगा, बट डेट उसकी आपके पास 27 मई होगी, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज शेयर कर दूं ट्रांजिशन वालों के लिए कि अगर आपका कोई एग्जाम पास है, जैसे अदनान साहब आपका है, तो उसका क्रेडिट मेंटेन रहेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्रेडिट जाया हो जाएगा, इसलिए भी हमें चेंज से उस तरह से कोई घबराने की जरूरत जो है हमें नहीं होनी चाहिए। सही हो गया जी सर? सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैं जो गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया है वो काइंडली आप जो है वो साथ साथ फिल करते रहे, सो दैट कि हम सेशन को प्लान कर लें, एंड आई टेक यू इन दैट ग्रुप जो कि व्हाट्सएप ग्रुप एंड सेशन के लिए बन रहा होगा। जनाब, मैं एनकरेज करूंगा जो वो साथी जो नए हैं, जो
जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं ली या जो नए इन क्वालिफिकेशन है, मुस्तजाब आपका मैं क्वेश्चन मैं लेता हूँ प्लीज। जो वो साथी जो क्वालिफिकेशन में नए हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं है या दोस्त हुआ क्वालिफिकेशन, आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज दोज मेंबर्स एज वेल टू आस्क योर क्वेश्चन। जी जनाब वाला, तो कुछ तो आए हुए थे चैट में क्वेश्चंस, मैं वो भी ले लेता हूं। यू कैन जस्ट ओपन अप योर माइक एंड आस्क। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये चीज़ पूछनी थी, जैसे मैंने तो पुराने सेशन आपका लिया हुआ है कंप्लीट, और उसके बाद अब मैं अगर नए सेशन में पेपर अगर पुराने सेशन से पढ़ के अगर नए सेशन में विदाउट क्लासेस दे सकता हूँ, या मुझे लाजमी पढ़ना पड़ेगा? देखिए चेंजेस तो हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि स्केलेटन ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो है वो चेंज हो गया है। तो अगेन इंडिविजुअल सिनेरियो यार, इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इंडिविजुअल मुझसे कर लें, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के नंबरिंग स्केलेटन में चेंज है। तो अगर आप बिल्कुल पुराने पे पढ़ के नए एग्जाम में बैठ जाएंगे तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ पे यार एक चैलेंज एग्जाम का क्वेश्चन हमारे पास आया। चैलेंज एग्जाम एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, उसको मैं एड्रेस कर दूं। चैलेंज एग्जाम से पहले जैसे यार ये सवाल आ रहे ना, मेरे ख्याल में अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक चीज जो है ना आपके साथ शेयर कर ही दूं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि चेंज जो है ना वो चेंज की नेचर बेसिकली किस तरह की है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगेन आपके साथ मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, प्रेजेंटेशन पूरी दूंगा नहीं, but just to give you an idea, this was the presentation that I gave at ICAP House Lahore few weeks ago, और वहां पे भी जो है वो चेंजेस को ही हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। तो चेंजेस के हवाले से आप सब लोग पूछ रहे हैं, जो कि राइटली सो पूछ रहे हैं, तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको एक दफा जो है वो देख लें कि किस तरह की चेंजेस जो है वो। जी मारिया, एग्जाम का जो मेन क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड्स ही होता है। स्टैंडर्ड्स होता है, इंटरनेशनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स होते हैं और उनकी एप्लीकेशन होती है ऑफ कोर्स, तो वो हमारी वाली चीज होती है। क्या आप देखें, ये है हमारा पुराना स्केलेटन, अगर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। अब जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ये उनकी वो फेमिलियर होंगे इस पिक्चर से, राइट। तो अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड्स का जो नया स्केलेटन है बेसिकली वो ये बन जाएगा दिस वन। पुराने स्केलेटन से बेसिकली जिसमें आपके पास मैंडेटरी गाइडेंस है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड गाइडेंस है, अब वो चीज खत्म होके आपके पास 5 डोमेन्स बन गई, और वो 5 डोमेन्स स्टैंडर्ड्स की बन गई, और स्ट्रक्चर आपके पास ये बन गया। आईपीपीएफ है, मैंडेटरी और सप्लीमेंटल भी है, लेकिन उसके अंदर इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्लोबल गाइडेंस है। ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बनता है। आप ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, अगेन मैं इसकी तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो हम एक तरह से स्टडी स्टार्ट कर देंगे, जो कि इंशाल्लाह भी आगे करेंगे। तो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव के स्टैंडर्ड्स के स्ट्रक्चर और स्केलेटन में चेंज आया। तो अगर आप ये समझते हैं कि बिल्कुल पुराना पढ़ के मैं नए एग्जाम के सामने बैठ जाऊंगा, तो अगेन एक इन्वेस्टमेंट इतनी जो करनी है अच्छी खासी, क्यों ना सही तरह प्रिपेयर हो गई करें, और इस तरह का रिस्क जो है वो ना ही लें कि हम अपना टाइम, एनर्जी और फाइनेंसेस जो है वो इस तरह की चीज पे इन्वेस्ट करें कि पुराने मॉडल पे तैयारी करके नए मॉडल की गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव देने चले जाए। अगेन है तो दोनों आर द कार्स बोथ रन ऑन द सेम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स, बट चूंकि आपने एक सर्टन एग्जामिनेशन क्राइटेरिया अचीव करना है तो आपके लिए फिर पास होना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि पुराने वाला पे पढ़ के चेंज अलग से मेरे साथ डिस्कस कर लें, कुछ कर लें, एंड देन आप दे दें जी। रहीम साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैंने ये पूछना है कि मैं अभी बिल्कुल ये सीआईए के लिए बिल्कुल नया हूँ, कमिंग फ्रॉम द एसीसी बैकग्राउंड। तो जैसे 28 मई के बाद कोर्स चेंज हो रहा है, तो एक तरफ ये थोड़ा गाइडलाइन दे दे कि रजिस्ट्रेशन जो आईआईए की है वो फिर क्या 28 मई के बाद करनी चाहिए, अभी भी कर सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहें? जी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। देखें 28 मई के बाद सिलेबस चेंज होने का मतलब ये है कि फर्ज करें आप 27 मई को, यार आपकी ना माइक से मुझे मेरी आवाज वापस आ रही, ओके मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, थैंक यू। अच्छा देखिए, फर्ज करें आज 27 मई है, आज मैं अगर एग्जाम देने बैठूंगा तो मुझे पुराने सिलेबस के मुताबिक एग्जाम आएगा। कल 28 मई है, कल अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मुझे नए सिलेबस के मुताबिक एग्जाम आएगा। इसका रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम चूंकि सारा साल अवेलेबल होता है,
तो जब भी आपने एग्जाम देना है आप रजिस्ट्रेशन उससे 2 to 3 वीक्स पहले स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता चूंकि आप अगर मई में डिस्काउंट अवेल करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा लें, एग्जाम उसके बाद आप जून में दें, जुलाई, यानी सेशन जब होगा इंशाल्लाह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप उसमें जो है एग्जाम जो है कंफर्टेबली दे सकते हैं। उसके बाद भी जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास 6 महीने होते हैं डेट बुक करने के लिए, एग्जाम आप उसके बाद भी कभी भी जो है वो दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का की जो रिक्वायरमेंट है उसका चेंज ऑफ सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। सो रजिस्ट्रेशन अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहें अभी करवा लें। अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंसिस आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करने हैं तो आप बाद में कर लीजिएगा। एक और आसान तरीका ये होगा, मिसाल के तौर पे, कि आप मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन अभी दे लें। रजिस्ट्रेशन पे आप 20% डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, बाद में जब एग्जाम आप देना चाहें तो उस वक्त फीस दे दें, या भी फीस दे दें, फीस आपकी उनके पास एडवांस पड़ी है, अभी से मतलब है मई के महीने में देना चाहें दे दें, बाद में एग्जाम आप जब भी देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन मैं मई के महीने में फीस देने पे ओवर एम्फसाइज इसलिए नहीं करूंगा कि आपने ज्यादा, देखिए ज्यादा मैटर ये करता है कि आप फी पे करें आईआईए ग्लोबल को अपनी एग्जाम की और एग्जाम दें और सक्सेसफुल हो। ये मैटर बहुत कम करता है कि यार आपने डिस्काउंट वाली फीस पे की थी या नहीं की। 25% ये है ना, वो बहुत कोई लाखों रुपए का डिस्काउंट तो फ्रैंकली है भी नहीं, क्योंकि ओवरऑल ही कॉस्ट को इतनी ज्यादा बड़ी तो है नहीं जी। डिस्काउंट सिर्फ मई के महीने में एप्लीकेबल है। तो डिस्काउंट अवेल करने में मैं फोर्स नहीं करूंगा कि यार जरूर आप जो है ना मई में अपनी फीस पे कर दें, और बाद में जब फर्ज करें एग्जाम देने लगे तो मे भी कोई पर्सनल मसरूफियत आ जाए। तो ज्यादा मैटर ये करता है कि हाँ, आप अपने लिए वो विंडो पिक करेंगे एग्जाम में बैठने की जिसमें आप लगे कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं इसमें एग्जाम दे सकता हूँ, चाहे फीस डिस्काउंट पे दी हुई या नहीं पे दी। डिस्काउंट पे फीस नहीं भी दी हुई, इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके निकलेंगे सेंटर से बाहर तो वो आप ज्यादा खुश होंगे, डिस्काउंट पे दी होगी ना। इंटरेस्टिंग बात साथ आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट आपका राइट अवे आ जाता है। यार डिस्काउंट मेंबरशिप पे एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेशन फी जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं उस पे एप्लीकेबल है, और एग्जाम फी पे एप्लीकेबल है। मेंबरशिप फी वैसे ही $100 है, उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। जी जनाब, और आपका कोई क्वेश्चन क्लियर है रहीम साहब आपको? जी जी रिजवान साहब, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल ठीक जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया बाद में कंपाइल कर सकूं ताकि रिजल्ट। जी दोस्तों। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अबू बकर साहब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ के अराउंड होगी, तो इसमें क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन का सेशन भी इसमें कितने मंथ के अराउंड होगी? सॉरी, 3 मंथ अराउंड आपने बताया था कि जी कोर्स जी, ड्यूरेशन है। 2.5 to 3 months, यस। तो इसमें क्वेश्चन आंसर भी इसी में आप प्रिपरेशन करवाएंगे या वो अलग जी से बिल्कुल, सेशन? क्वेश्चन एंड आंसर भी हम करते हैं। हम सिलेबस जो है वो मुकम्मल जब करते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर एंड प्रैक्टिस एंड रिव्यू सेशन रखते हैं जिसमें आप के प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन एंड आंसर एग्जामिनेशन टेक्निक कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये बेसिकली, लेट मी जस्ट फिनिश दैट, मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सिंस एक अलग से एक हमारा डेडिकेटेड फोकस व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसमें आपके जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो वैसे भी आप इंडिविजुअल बेसिस पे मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आप अभी जो हमारा मेन ग्रुप बना हुआ है इसमें चैट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल ग्रुप है। अगर इसमें चैट खोल दें तो देयर इज सो मच ऑफ ट्रैफिक गोइंग ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ राइट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी एंड, क्योंकि आज की डिस्कशन के बाद आप क्वाइट इन्फॉर्म्ड होंगे एज कम्पेयर टू आज के सेशन से पहले। तो हमारा जो दूसरा ग्रुप एक बनेगा उसमें बेसिकली एक तो आप मेरे साथ इंडिविजुअल वो सिनेरियो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो हमारा दूसरा ग्रुप होता है जो कि डेडिकेटेड फोकस ग्रुप होता है उसमें चैट भी ओपन होती है। तो उसमें आपके जो इंडिविजुअल सिनेरियोज हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं इंडिविजुअली, एंड देन हम जो है ऑब्वियसली सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर एंड प्रैक्टिस सेशन भी रख रहे होते हैं। तो ये उसको मिला के जो है हमने बात की थी ताकि आपका जो प्रेपरेशन लूप है बेसिकली वो मुकम्मल हो रहा हो। ठीक हो गया अबू बकर साहब? ठीक हो गया सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि हम सेशन कब स्टार्ट करेंगे आप लोग, मतलब कब मई में स्टार्ट करें अपना सेशन? जो सेशन जो है इंशाल्लाह प्लान्ड इन द स्टार्ट ऑफ मई। थोड़ी सी चीज जस्ट मैं शेयर कर दूं कि मेरा एक ट्रेवल जो है एक्सपेक्टेड है बाय एंड ऑफ अप्रैल और जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ मई, जिसकी क्लैरिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएगी कि वो कब होगा। सो या तो वो अभी होगा या परहैप्स वो फिर, वरना फिर शायद 6 महीने बाद होगा। सो अगर तो है कि वो ट्रेवल अभी आ जाता है जो कि कुछ दिन का ट्रेवल होगा, सो अगर तो वो ट्रेवल आता है तो इंशाल्लाह वंस आई एम बैक आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द ट्रेवल, ऑब्वियसली आई विल कीप यू पोस्टेड इन द ग्रुप। सो फिर उसके बाद राइट आफ्टर दैट ट्रेवल
इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं देखूंगा अगर वहां टाइम का सीन इंशाल्लाह बन जाता है तो perhaps I'll be taking up the sessions from out of Pakistan as well. अदरवाइज अगर वहां थोड़ा ऐसा सेटअप रहता है कि वहां पे नहीं हो पाता तो फिर इंशाल्लाह वहां से हम बैक, जो कि कुछ दिनों का ट्रेवल एक्सपेक्टेड है, तो इंशाल्लाह राइट आफ्टर दैट हम इसको स्टार्ट कर रहे होंगे। सो मोस्ट लाइकली हम इसको विद इन फ्यू डेज ही बहरहाल स्टार्ट कर रहे होंगे। आई एम होपफुल, जो मेरी पर्सनल विश है वो तो ये है कि वो डेफर ही हो जाए, बट ये है कि अगर इन केस वो नहीं होता बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल कमिटमेंट, तो इंशाल्लाह राइट आफ्टर दैट हो होगा, व्हिच ऑब्वियसली आई विल कीप यू पोस्टेड इन द ग्रुप। जी जनाब। चलें, थैंक यू वेरी मच। All right. Rizwan, one more question from my side. Sure. So you told that there will be a discount in exam fee, if I'm not wrong. So if I'm paying by this month, May, and I can take up the exam within 6 months. That is Yes. what you meant, right? Yes, you can So take up the I can exam avail the anytime discount during. and then okay. You Please can tell take me. up the exam anytime after. You can take up the exam in 6 months anytime after you have paid. Okay. So by the time we complete the course in 3 months, and then we will be starting, and then we will be appearing for the exam. Then you will be providing more questions and then the review and Absolutely. the chat Like support if and the you WhatsApp. like, if I make up a scenario, like for example, you pay. That's why I am suggesting to pay towards the end of May, right? Because there are two reasons for it. Why I am suggesting all of you कि अगर May का discount avail करना भी है ना तो end में करें। उसकी 2 वजह, मैं दोनों वजह आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो Please ये tell कि me वो in 6 महीने English. आपके बाद में शुरू होंगे, right? Okay, I'll explain that in English. That I am suggesting that if you want to pay in the month of May, you should be paying towards the end of May, right? Now there are two reasons for that. One is that obviously you have those extended full-fledged 6 months with you, right? After your date of payment, number one. And number two is Okay. that once you pay your membership fee, so that membership fee, because first you have to pay the membership fee, so that membership fee is basically applicable for 1 year, because for that 1 year, basically you get discounted prices of members. The fee structure that I shared with you guys is related to the fee structure of members. That's why I have included the membership fee in the fee. So Understood. let's suppose you pay today for the membership fee, then your membership will be valid for the next 12 months. Point number one. And the point number two is that to pay the registration fee, you get a time window of 3 years from IIA Global to complete your qualification. So why pay early and start your 12 months membership cycle and 3 year CIA qualification cycle? So you pay it as delayed as possible to avail the maximum of those 12 months, and which would be the complete 12 months, and also to avail the maximum of those 3 years by deferring those 3 years, and you also avail the maximum of those 6 months by deferring those 6 months. Like for example, you pay on 1st of May, your 6 month would start from 1st of May. You pay from 31st of May, you pay on 31st of May, your 6 month would start from 31st of May. So you have that extended period of time to be comfortable, and our sessions would also be completed comfortably within that time range. You can also absorb any official commitment, any family commitment, any contingency, any problem, and still you are comfortable to appear in your exam with the discount. So that's the sort of strategy that you can make. So you see, that's the whole purpose of having Thank you, this session. Rizwan. Sure. Plan so well that we are comfortable not only with the preparation, but we are also comfortable with the finances, and we plan the best way through the session to maximize our chances of success. So that's the whole purpose of, you see, gathering all of you and gathering all of us here and maximize our chances of success and also the learning that. So hope that makes the answer clear. Monica, is that clear? Thank you, Rizwan. Yes, well. perfect. Ji, Janab, any questions from anyone? अच्छा रिजवान भाई, एक क्वेश्चन और क्लियर कर दें। अगर हम ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट एंड ऑफ मई पे, तो ये प्रोसेस एस्टिमेटेड कितने डेज का होता है? 1 दिन का या 1 वीक का, कि जिसमें आपने और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? जो मेंबरशिप आपकी होती है वो तो राइट वे हो जाती है। जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो भी राइट वे ही पे हो जाती है, डिस्काउंट आपको साथ ही मिल जाएगा उसका। जब आप एप्लीकेशन फी पे करते हैं, इट्स लाइक आप उनके साथ रजिस्टर कराते हैं, जिसमें आप अपना आईडी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, आप अपना प्रूफ ऑफ एजुकेशन, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस अटैच करते हैं, जिसमें नॉर्मली वो 1 से 2 वीक्स लगा देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने में। सो कंफर्टेबली स्पीकिंग,
जब भी आप एग्जाम, यानी वर्स्ट के सिनेरियो में, वर्स्ट केस का मतलब है आप बिल्कुल एंड में जाके भी फीस पे करें, आप कहते हैं यार मेरा प्लान है कि मैं फर्ज करें 15 मई को एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अगर अपना प्रोसेस उससे 1 मई को 15 दिन पहले भी शुरू करते हैं ना, मैं मई का महीना वैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इसका डिस्काउंट से ताल्लुक नहीं है, तो लेट्स सपोज आप जुलाई की बात करते हैं कि यार मैंने ना 15 जुलाई को एग्जाम देना है, तो आप अपना प्रोसेस 1 जुलाई को भी अगर स्टार्ट करेंगे तो बाय 15 यू आर कंफर्टेबली एबल टू अपियर इन एग्जाम। जो आईआईए ग्लोबल के साथ आपका प्रोसेस होता है उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सारा ऑनलाइन होता है, आपने कार्ड से पेमेंट करनी है, आपने मुझे पे नहीं करना, किसी इंस्टीट्यूट को पे नहीं करना, हैंड किसी को पे नहीं करना, यूज योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड, विजिट द आईआईए ग्लोबल वेबसाइट, ऑफ कोर्स आई विल गाइड द होल प्रोसेस कि कैसे कैसे कहाँ पे करना है, एंड विद इन 15 डेज कंफर्टेबली आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। 15 डेज भी मैं आप कह लें कि क्वेश्चन रख के बात कर रहा हूँ, जनरली क्वाइट ऑफन 2-3 दिन में भी हो जाता है, बट कभी कभार वो प्रूफ ऑफ एजुकेशन अप्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। सो बहुत कंफर्टेबली मैं आपको टाइम रख के बता रहा हूँ कि अगर आप 10 से 15 दिन का मार्जिन भी अपने पास रखते हैं, आप कहते हैं यार मुझे 10 दिन बाद एग्जाम देना है, आप आज प्रोसेस स्टार्ट कर दें, दैट विल बी गुड इनफ। ठीक हो गया भाई? Assalamu alaikum. This is Asif. जनाब Since you were mentioning that the syllabus is changed from the last, so what about the practice questions? Do we have relevant practice questions in relation to the new syllabus, or how will it work? Like previous questions, most of them would well, of become... course, if we are targeting the new syllabus, then of course the practice questions that we would refer to are also going to be the applicable syllabus. So yes, we shall be doing the practice, and I'll be sharing the practice questions according to the syllabus requirement, of course. Okay, thank you. और अच्छा, एक चैलेंज एग्जाम का क्वेश्चन यार बार बार आ रहा है, सॉरी, मैं आप क्वेश्चन प्लीज होल्ड कर लें, वो चैलेंज एग्जाम का क्वेश्चन बार बार चैट में आ रहा है, मैं वो जरा आंसर कर दूं। देखिए, चैलेंज एग्जाम जो है ना बेसिकली अवेलेबल होता है अगर आप एसीसीए मेंबर हैं तो आपके, या सीसा क्वालिफाइड हैं, शायद कोई सीसा क्वालिफाइड भी हो हमारे सेशन में, बट मेजोरिटी शायद नहीं होगी, एसीसीए से कुछ हमारे साथी हो सकते हैं। अगर आप एक्टिव एसीसीए मेंबर हैं, सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट है, यानी आपकी सब्सक्रिप्शंस पेड है एसीसीए की, तो आप सीआईए चैलेंज एग्जाम दे सकते हैं। अब सीआईए चैलेंज एग्जाम एक जेन्युइन स्ट्रीम है, बट इट आल्सो कम्स विद फ्यू चैलेंजेस, राइट? इट्स अ चैलेंज एग्जाम, सो इट्स नॉट ओनली एन एग्जाम दैट इज अ चैलेंज, बट इट आल्सो कम्स अप विद फ्यू चैलेंजेस एज वेल। वो चैलेंजेस क्या है दोस्तों? एक तो ये कि ऑब्वियसली तीनों पार्ट्स को मर्ज करके जो है वो एक सिलेबस, एक एग्जाम बनाया गया है। इसका मतलब है कि चैलेंज एग्जाम का सिलेबस इज ह्यूज, राइट? सिनेरियो, प्रॉब्लम और चैलेंज नंबर 1। देन ये कि जो कॉस्ट है चैलेंज एग्जाम की, दैट इज फार मोर देन दिस 3 पार्ट स्ट्रीम। जैसे हमने बात की थी कि टोटल एस्टिमेट विच इज अराउंड $1100, ये आपने पे करना है इन 5 डिफरेंट स्टेप्स एंड इन 5 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। अगर आप चैलेंज एग्जाम में जाते हैं तो उसकी जो फी है दैट इज $1,350 टू बी एग्जैक्ट, आई बिलीव $1,300 to $1,400, दैट इज द फी फॉर चैलेंज एग्जाम व्हिच यू हैव टू पे इन अ लंप सम। उसमें आपके पास ये 5 डिफरेंट फेजेस और 5 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स वाला ऑप्शन नहीं है। सो आपको एक हेफ्टी अमाउंट पे करनी है ऑल टुगेदर। उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। चैलेंज एग्जाम में जो सक्सेस रेशियो के जो स्टैट्स हैं वो काफी कम है। चैलेंज एग्जाम का टफनेस लेवल काफी ज्यादा है। चैलेंज एग्जाम में सर्टेन मंथ्स और सर्टेन विंडोज हैं जो कि एग्जामिनेशन विंडो है, उसी में आप रजिस्टर कर सकते हैं, और सर्टेन मंथ्स हैं उसी में आप एग्जाम दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक द 3 पार्ट स्ट्रीम के सारा साल आपके पास एग्जाम अवेलेबल होता है। सो फर्स्ट सिनेरियो अटेम्प्ट में आपको फी पड़ेगी तकरीबन $1,300-1,400। अगर फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि चैलेंज एग्जाम में जो सक्सेस आउटकम है वो इतना ज्यादा नहीं है, सो अगर आपका एग्जाम पास नहीं होता तो दूसरी अटेम्प्ट में आपको फीस पड़ेगी तकरीबन $800 to $900। और फर्ज करें इन केस उसमें भी आपका एग्जाम पास नहीं होता, सो सेकंड अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट दैट यू कैन टेक एज चैलेंज एग्जाम। अगर फर्ज करें सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका पास नहीं होता तो आपको ऑल द वे बैक 3 पार्ट स्ट्रीम से ही आना पड़ेगा। चैलेंज एग्जाम फाइन, यू कैन डू इफ यू विश टू टेक रिस्क ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। अगर आपको फाइनेंसेस और ये वाली चीजों का इशू नहीं है, या आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा सिलेबस एक ही दफा हैंडल करना चाहते हैं जस्ट टू अवॉइड 2 सिटिंग्स ऑफ एग्जाम, तो फाइन आप कर सकते हैं। चैलेंज एग्जाम के भी प्रोफेशनल्स हैं
जो मेरे साथ अटैच होते हैं, गाइडेंस लेते हैं. I am also, by the way, a fellow member of ACCA, so I know both of the streams, and I also guide and teach on both of the streams. But this I am telling as a professional, as a trainer, as an ACCA member, as a CIM member, that preferred stream is the 3-part stream because of all of these valid reasons जो कि आपके साथ अभी हमने डिस्कस की हैं. So ये चैलेंज एग्जाम के कुछ अपने इश्यूज हैं, तो इसलिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो 3-part स्ट्रीम है. अगर किसी साथी को लगता है कि नहीं मैं ये सारे चैलेंजेस लेने के लिए विलिंग हूँ, फाइन, गुड टू गो. Okay, obviously it's your call at the end of the day. जी जनाब, so hope that makes challenge exam thing clear. जी मोहम्मद शुएब साहब, आप बिल्कुल मुझे पर्सनल चैट में क्वेश्चन कोई भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस एनी पर्सनल सिनेरियो, पुराने से नए की ट्रांजिशन, आपका अभी का सिनेरियो, अभी का कोई क्वेश्चन वगैरह आप पूछना चाहें तो आप जो है वो Okay, yeah, this is Kashif, and most of the participants have asked regarding either first we need to pay membership fee or first we need to register ourselves to enroll in IIA. Okay. So first you need to pay. This is different from the Pakistan or British qualification methodologies. First you become a member, right? जब आप member बन जाते हैं तो आपको prices member वाली लगती है, जैसे हमने डिस्कस की अभी pricing structure. So first you become a member. पाकिस्तान से आप रजिस्टर होते हैं as virtual member पाकिस्तान, जिसकी $100 फी है, क्योंकि पाकिस्तान में IIA ग्लोबल का ऑफिस नहीं है. अगर आप UAE वगैरह से होते हैं तो वहां पे कोई एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ फी ऐड करते हैं. इंटरेस्टिंग बात ऐड कर दूं कि आप मेंबर कहीं से भी बन सकते हैं. आप UAE में भी रहते हैं तो आप मेंबर पाकिस्तान से बन जाए, पाकिस्तान में फीस कम है, एग्जाम बेशक UAE दे दें, कोई मसला नहीं है. हाँ, जहां से भी मेंबर बने अपना होम एड्रेस वगैरह वहीं का डालें ताकि मसला ना हो. तो फर्स्ट यू बिकम अ मेंबर, देन उसके बाद आप एप्लीकेशन फी पे करते हैं, जिसके साथ आप अपना प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एजुकेशन लगाते हैं. जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी पार्ट 1 की एग्जाम फी पे करें और एग्जाम आप दे सकते हैं. Once inshallah वो क्लियर होगा, you go for part 2, you go for part 3, and this is how you split the cost of the qualification at 5 different steps. और ये सारा कुछ आप फर्ज करें मेंबरशिप, एप्लीकेशन फी और पार्ट 1 फी आप आगे पीछे 2-2 दिन के गैप से करना चाहें कर दें, आपकी कॉल है. आप गैप रख के करना चाहें 15-15 दिन, महीना, आपके सिनेरियो के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक आप वो करना चाहें आप कर सकते हैं. सो इसमें टोटल फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है. कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आज मेंबरशिप फी पे कर दी है तो साथ ही एप्लीकेशन पे करनी है, एप्लीकेशन पे कर दी है तो साथ ही एग्जाम भी पे करनी है. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप अपनी फंड मैनेजमेंट के थ्रू के मुताबिक, अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक, अपने स्केड्यूल के मुताबिक कभी भी जो है वो कर सकते हैं. जी भाई, क्लियर जनाब काशिफ साहब? Yeah, understood. Thank you. जी जनाब, मोस्ट वेलकम. रिजवान भाई एक चीज गाइड कीजिएगा. जी IIA की वेबसाइट पे मैं मेंबर्स नहीं देख पा रहा, आप काइंडली वो जो फॉर्म है वो फिल कर दें सो दैट के सेशन में आप एनरोल हो सके एंड वी हैव डिस्कशन अकॉर्डिंगली. जी प्लीज कंटिन्यू. जी रिजवान भाई, IIA की वेबसाइट पे मेंबर्स, नॉन मेंबर्स और एक थर्ड ऑप्शन भी शो हो रही होती है स्टूडेंट. उसके बारे में कुछ गाइड कीजिएगा. देखिए वो ऑप्शन उनके लिए है अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, उसके लिए फिर आपको साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लगानी पड़ती है. जैसे कहीं अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो फिर आप ट्रांसक्रिप्ट लगाते हैं, फिर उसमें आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चूंकि फिल नहीं होती, क्योंकि आप तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो फुल टाइम स्टूडेंट. तो जब आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो फिर उसमें फिर आपका एग्जाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो सर्टिफिकेशन स्टेटस मिलता है सर्टिफाइड का, वो फिर आपको तब मिलेगा जब उतना पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस गुजार के बाद में फिर आप अपना एक्सपीरियंस फाइल करते हैं. हाँ, ये एक्सेप्शनल सिनेरियो हो सकता है कि जी पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था, अब मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, तो फिर आप वो अवेल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत रेयर होता है. आमतौर पे सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं, सारे जॉब्स कर रहे होते हैं, और ये क्वालिफिकेशन सूट भी प्रोफेशनल बंदे को करती है. हम सब ने एक लेवल अचीव किया है, नेक्स्ट पोजीशंस को, नेक्स्ट जॉब्स को, नेक्स्ट करियर लेडर को अप्रोच करने के लिए, टारगेट करने के लिए हम क्वालिफिकेशन करते हैं. सो नॉर्मली सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं. तो जो एडवाइजेबल रूट है वो मेंबर वाला रूट होता है, प्रोफेशनल मेंबर. मैं इसे इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं पहले एकेडमिक बैकग्राउंड से था, उसके बाद मैंने ICM में तकरीबन कंप्लीट कर लिया और अभी मैं फाइनलिस्ट हूँ, 1 से 2 पेपर बाकी हैं. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस तो मेरा ऑडिट में 8+ ईयर्स का है, जो कि प्रूवन है. नहीं, आप मेंबर हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे आपने बोला बैचलर्स या मास्टर्स को फाइल करेंगे, साथ आप अपना एक्सपीरियंस लगा देंगे. ICM में आपका भी कंप्लीट नहीं है तो आप ICM में मत लगाइए. ठीक है. ठीक हो गया. बाकी अगेन जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का सिनेरियो है, ऑफ कोर्स वो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी हमारे साथी होते हैं उनके साथ जो है वो शेयर जाहिर है वो कर ही रहा होता है, वो चल रहा होता है. जी दोस्तों, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन ऑफ यू, फर्दर क्वेश्चंस?
जनाब चैट में कोई अनएड्रेस क्वेश्चन तो नहीं रह गया? बाकी सेशन की डेट एग्जैक्टली इंशाल्लाह आई विल बी अनाउंसिंग इन द ग्रुप, and looking forward to have all of you in the session. We will be having 2 classes in a week. If you have any question in the meanwhile, just pick up your phone and drop me a message or give me a call. And 2 classes in a week होंगी, sessions हमारे online होंगे, after office hours होंगे, 2 working days में होते हैं, days relatively flexible होते हैं, but quite often हम Mondays and Wednesdays follow कर रहे होते हैं, but flexible होते हैं. और इसके अलावा अगर आपका कोई सेशन रह जाए किसी वजह से आप ना ले सके तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी ले सकते हैं. स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल सेशन में मैं खुद शेयर कर रहा हूँगा, एंड ये वो सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं जो क्वाइट ऑफन क्वेश्चंस में आ रही होती हैं. सो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग दैम. जी जनाब, हमदान साहब, नवीद साहब, तूबा, प्रजक्ता, तैयब, साद, हसीब साहब, दानिश, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू जेंटलमैन? जी दोस्तों, इफ ऑल क्वेश्चंस आर एड्रेस तो फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है हमारे स्टडी सेशन. फी स्ट्रक्चर, कोचिंग फी ऑफ पार्ट 1 सेशंस इज क्वाइट मॉडरेट, व्हिच इज 17,000 पाकिस्तान रुपीस, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हाफ यू कैन रिमिट एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन एंड द सेकंड वन यू कैन रिमिट आफ्टर अ मंथ, ताकि आपका कैश फ्लो साइकिल मैनेज रहे. स्टिल अगर इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी किसी को चाहिए हो तो यू कैन डिस्कस विद मी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग वगैरह, एंड दिस इज क्वाइट मॉडरेट टू बी ऑनेस्ट. आजकल हम देखते हैं जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से स्पेशली कंपेयर करें, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड ऑन आवर लर्निंग, डेवलप अ कम्युनिटी, connect with fellow professionals. The best thing I enjoy is to interact with gentlemen and ladies like yourself, and we develop a good community of professionals and I would say friends. The session does not restrict to a session of qualification or study. एक अच्छी community बन जाती है. मैं लाहौर में रहता हूँ तो लाहौर में मुलाकात भी होती है. जी आसिफ साहब, वो कंप्लीट पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ. इट्स नॉट मंथली फी, कंप्लीट पार्ट 1 की बात हो रही है. और सो एक अच्छी कम्युनिटी इनफैक्ट बन जाती है. आई एम इन लाहौर, आप लाहौर आए, बी माई गेस्ट. जो लाहौर में है, मिलना चाहें, मोस्ट वेलकम. माई ऑफिस इज इन गुलबर्ग. आई लिव इन जौहर टाउन. जो लाहौर के होंगे या लाहौर आते होंगे, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. सो आई थिंक दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड. स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम. प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू, एंड इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इन द स्टडी सेशंस दैट वी विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह. Kindly fill the Google form that is in the group. Chat में भी मैंने शेयर कर दिया है. किसी को नहीं मिला तो मुझे आप मैसेज करके ले सकते हैं. I'll see you in the session इंशाल्लाह जी. Thank you जी, thank you. अल्लाह हाफिज. Thank you very much जी, thank you. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. इस सेशन की जो है कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कॉल पे जो है आप कांटेक्ट कर लीजिएगा जी. इंशाल्लाह स्टडी सेशन में मिलते हैं जनाब. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.